ایک بہترین ڈکار آئے گی، ایک بہترین ڈکار آئے گی اور پسینہ چھوٹے گا. اور پسینہ کیسا کہ آس پاس کے ماحول کو معطر کر دے گا. آس پاس کا جو ماحول ہے اس کو معطر کر دے گا. معطر یعنی کیا؟ خوشبودار. آس پاس کے ماحول کو خوشبودار کر دے گا. آج میرا معاملہ کیا ہے، اگر ذرا زیادہ پسینہ نکل گیا بازو میں نماز پڑھنے والا سوچنے میں پڑ جاتا ہے نا. مگر جنت میں ایسے نہیں ہوگا. جنت میں ایک بہترین ڈکار آئے گی، ایک میٹھی ڈکار آئے گی اور اس کے بعد پھر پسینہ چھوٹے گا. اور جب یہ پسینہ چھوٹے گا آدمی پوری طرح سے فارغ ہو جائے گا اور پھر سے نیا کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا، ہے نا. انشاءاللہ اس میں باہر جانا ہے سموسے کے لیے نہیں نا، جنت میں انتظار کر لیں گے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت والا. آئیے اس کے تعلق سے سن لیں. شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تباہی میں پڑ جاؤ، جب کوئی بھی مشکل آ جائے، تباہی میں پڑ جاؤ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر سے بولو، کوئی بھی پریشانی میں پڑ جاؤ فوراً آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے کہ اللہ تعالی سے کئی مصیبتیں اس تسبیح کے وجہ سے رب تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے. یہ ایک تسبیح پڑھ لیے، بڑے سے بڑی پریشانی اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا. ٹھیک ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، سب سے بڑی تباہی مال و دولت وہ قتل نہیں بلکہ انسان کے گناہوں کے دلدل میں دھس جانا ہے. جب انسان کو احساس نہیں ہوتا نا کہ اب وہ گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یہ جو احساس مر جاتا ہے یہ تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے. یہ سب سے بڑی تباہی ہے. یعنی اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا موبائل پہ کوئی پروگرام دیکھ لوں اور اس میں کیا ہوتا ہے سب لوگ دیکھتے، اس میں کیا ہوتا ہے سب لوگ دیکھتے، تو یہ تباہی کی علامت ہے. یہ تباہی کی علامت ہے. سب گناہ کر رہے اس لیے میں بھی کروں، اللہ اکبر، قطعی نہیں، قطعی نہیں. جب تم قبر میں رکھے جاؤ گے تو سب آئیں گے کیا قبر میں؟ نہیں نا، تم اکیلے رہو گے، تم سے اکیلے سے سوال و جواب ہوگا. اس لیے گناہ چھوٹے سے چھوٹا صحیح مگر اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے. اور اس تباہی سے باہر نکلنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنا لینا ہے انشاءاللہ عظیم. ہر کام کے پہلے آپ جوتا پہن رہے ہو، جوتا پہنتے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر جوتا پہنو. چھوٹی سے چھوٹی کوئی عمل کیوں نہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، پہلے آپ اس کی شروعات کیسے کرو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ عمل کوئی گناہ کا عمل نہ ہو، کوئی گناہ کا عمل نہ ہو، نیکی کا کوئی بھی عمل ہو، اسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھو گے، شروع کرو گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمان سے نازل ہوا تو بادل مشرق کی طرف، بادل پورا مشرق کی طرف بھاگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہوائیں ٹھہر گئی، بالکل ہوائیں رک گئی. پھر اس کے بعد سمندر میں جوش آ گیا. دھیان رکھو، اگر سمندر میں جب جوش آتا ہے تو ہوائیں تیز چلنے لگتی ہے، مگر یہاں پہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اترا تو ہوائیں ٹھہر گئی اور سمندر میں جوش آ گیا. چوپائے نے توجہ کے ساتھ اپنے کان سے سنا
चौपाए जो जितने भी रेवड़ होते हैं, बकरी है, भैंस है, ये जो चौपाए होते हैं ना, ये सबने बड़े गौर से अपने कानों से सुना। शैतानों पर आसमान से पत्थर बरसे। अल्लाह अकबर। जरा सोच लीजिए कि ये कितना मुबारक कलमा है कि जितने शैतान थे उन पर आसमान से पत्थर बरसे, और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम के साथ फरमाया, जिस चीज पर भी इसका नाम लिया जाएगा वो इसमें बरकत देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सोच लीजिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया कि ए रब ताला, ये फिरौन ने मेरा पीछा किया, तूने इसे मेरा पीछा करने दिया, हत्ता कि मेरे लिए समंदर में रास्ता बन गया, मैं समंदर से निकल पड़ा, फिर ये समंदर में आया और फिर इसके ऊपर पूरा के पूरा पानी चढ़ा दिया, उसे घर के आब कर दिया गया। यही काम तो उसके घर में भी हो सकता था, उसका महल था, उसके महल में भी किया जा सकता था, है ना। हजरत मूसा तो अपने तमाम लोगों को लेकर फिरौन के महल से निकल चुके थे, फिर उसके महल को धसा कर वहीं उसको गारत कर दिया जा सकता था। तो रब ताला ने कहा कि ऐ मूसा, फिरौन गुनाहगार था, फिरौन मुनकर था, मगर उसके घर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। तो पता चला कि जिस घर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होगा, रब ताला उस घर की हिफाजत फरमाता है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर जो एक बार दरूद पड़ेगा तो इस पर अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते 70 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। कितनी नेमतें? 70 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। आइए इसी बात पे एक बार बाबा से बुलंद दरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए एक चीज यहाँ से बहुत ही गौर से घर ले जाइएगा। हम जो भी अमल करते हैं ना, मामूली से मामूली अमल करते हैं, वो 7 जावियों में डिवाइडेड है, 7 हिस्सों में डिवाइडेड है। कितने हिस्से में? 7 हिस्से में डिवाइडेड है। उसके बाहर कोई काम कर ही नहीं सकता, उसके अलावा कोई ऐसा जाविया ही नहीं है जिसके अंदर वो काम किया जा सकते। सबसे पहले फर्ज, सबसे पहले क्या है? फर्ज के बाद वाजिब, फर्ज के बाद थक गए आप लोग? नहीं ना, आवाज निकालिए। फर्ज के बाद वाजिब, वाजिब के बाद माशाअल्लाह, और सुन्नत के बाद मुस्तहब, सुन्नत के बाद मुस्तहब, मुस्तहब के बाद मुबाह, मुस्तहब के बाद मुबाह। पहले कभी नहीं सुने, है ना, कोई बात नहीं। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को इज्तिमा में बुलाते हैं, ऐसे हलकों में बुलाते हैं, ताकि हमें जो बात नहीं मालूम हो वो मालूम हो जाए इंशाअल्लाह, है ना। मुबाह के बाद मकरूह, मुबाह के बाद मकरूह, और मकरूह के बाद हराम। मकरूह के बाद क्या होता है? हराम। हाँ, अभी इसकी तशरीह सुन लीजिए। अभी जैसा मेरा बच्चा कह रहा था, सुन्नत के बाद सुन्नते मौक़िदा, ऐसा कुछ कह रहा था ना, कोई सीख लीजिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है बेटा, बोल भी रहे, अच्छी बात है। देखो फर्ज जो होते हैं ना, फर्ज में 2 तरीके होते हैं। फर्ज में कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक फर्ज ऐन, एक फर्ज किफाया।
फर्ज ऐन और फर्ज किफाया। फर्ज ऐन जैसे नमाज, माँ बाप की फर्मा बरदारी, ये हर एक पे लाजिम है, चाहे मैं रहूं, मेरा भाई रहे, मेरे कोई दोस्त सहबाब रहे या आप लोग हैं, ये सभी पे फर्ज है, सभी पे लाजिम है। फर्ज अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिसे फर्ज कह दिया वो फर्ज है। फर्ज का ना करने वाला फासिक और फर्ज का इनकार कर देने वाला काफिर। जो फर्ज को ये कह दे ना कि ये फर्ज नहीं है तो वो काफिर हो जाएगा, और जो फर्ज को अदा नहीं करेगा वो फासिक कहलाएगा। तो नमाज जिस पर फर्ज है, अगरचे वो नमाज अदा नहीं करता है तो वो फासिक है। वो कौन है? फासिक है। ध्यान रहेगा ना इंशाअल्लाह। फर्ज की कितनी किस्में हैं? 2, फर्ज ऐन और फर्ज किफाया। फर्ज ऐन जो हर एक पर लाजिम है, और फर्ज किफाया चंद लोगों ने, किसी एक ने या चंद लोगों ने उसको अदा कर दिया तो वो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा, सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। अब ऐसा कोई अमल बता सकता है कि एक ने किया तो सबकी तरफ से अदा किया, या चंद लोगों ने किया तो सबकी तरफ से अदा हो गया? वो सुन्नत है। गुस्ल देना, जनाजे को गुस्ल देना, ये फर्ज किफाया है। किसी एक ने भी किया तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। नमाज जनाजा पढ़ना, ये चंद लोगों ने भी किया तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। अगर किसी ने भी नहीं किया तो सबके सब गुनाहगार, सबके सब गुनाहगार। इस बात को ध्यान रखो। समझ में आया ना? फर्ज किफाया और फर्ज ऐन का मतलब, सुन्नत में वाजिब, इसी तरह से वाजिब ऐन और वाजिब किफाया। ठीक। अब सुन्नत में सुन्नत मौक़िदा और सुन्नत गैर मौक़िदा। सुन्नत मौक़िदा जो सहाबाए किराम ने या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़े, और सुन्नत गैर मौक़िदा कभी कभार उन्होंने छोड़ दिया, कभी कभार उन्होंने छोड़ भी दिया। ऐसे अमल को सुन्नत गैर मौक़िदा कहते हैं। पर सुन्नत में भी, सुन्नत मौक़िदा में ऐन भी होता है और किफाया भी होता है। जैसे मेरे भाई ने कहा एतकाफ, एतकाफ ये सुन्नत मौक़िदा, सुन्नत मौक़िदा कौन सी वाली? किफाया। सुन्नत मौक़िदा किफाया। अगर नहीं करे तो पूरा के पूरा इलाका गुनाहगार। अगर किसी एक ने भी कर दिया तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। ध्यान रहेगा ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके बाद मुस्तहब, मुस्तहब में ऐसा है कि करो तो सवाब है, नहीं करो तो गुनाह नहीं है। करोगे तो सवाब है। जो नफील वगैरह होती है ना, ये मुस्तहब होती है। करेंगे तो सवाब, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है। मगर सवाब कभी कभी इतना मिल जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में जन्नत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। फातिहा करना, नियाज करना, नफील नमाज अदा करना, तस्बीहात पढ़ना, ये सब मुस्तहबात में शामिल है, ये सब मुस्तहबात में शामिल है। उसके बाद मैंने क्या बताया? मकरू। मकरू में फिर 2 तरीके हैं, मकरूए तंजीही और मकरूए तहरीमी। मकरूए तंजीही और मकरूए तहरीमी। और उसके बाद होता है हराम। हराम में कोई हिस्सा नहीं है। मुबाह, भाई ने एक बात कही, मुबाह। मुबाह कौन सा अमल होता है? जिसके करने न करने से न सवाब है न गुनाह है। जिसको करो या ना करो उसका ना सवाब मिलेगा ना गुनाह होगा। ध्यान रहेगा, ये बिल्कुल सेंटर में। मगर हम हर मुबाह को मुस्तहब में तब्दील कर सकते हैं। जैसे रास्ते से चल रहे, हमने ये नियत कर लिया कि अगर कोई अंधा नजर आएगा तो मैं उसे रोड क्रॉस करा दूंगा, कोई गरीब नजर आएगा तो मैं उसको खाना खिला दूंगा, कोई जनाजा नजर आएगा तो मैं उसे कांदा दे दूंगा, कोई अगर नमाज जनाजा हो रहा तो मैं शामिल हो जाऊंगा। तो आपके हर कदम पे अल्लाह ताला तुम्हें नेकी अता फरमाएगा, नियत का सवाब अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हो गया ना, खुद ब खुद मुबाह को हमने मुस्तहब में तब्दील कर दिया, है ना। तो इसी तरह से नमाज के अंदर भी
7 फर्ज होते हैं। नमाज के अंदर कितने फर्ज होते हैं? नमाज के अंदर कितने फर्ज है? 7। सबसे पहला फर्ज नमाज का और सबसे आखिरी शर्त, नमाज की 6 शर्तें हैं, 6 शर्तों में सबसे आखिरी शर्त वही नमाज का सबसे पहला फर्ज है, और वो क्या है? तकबीरे तहरीमा। सबसे पहला फर्ज क्या है? बोलो भाई, सबसे पहला फर्ज क्या है? सबसे पहला फर्ज क्या है? दूसरा फर्ज कयाम। दूसरा फर्ज क्या है? दूसरा फर्ज क्या है? कयाम। तीसरा फर्ज क्या है? किरात। तीसरा फर्ज क्या है? तीसरा फर्ज क्या है? किरात। ध्यान रहेगा ना इंशाअल्लाह उस दिन? हाँ। चौथा फर्ज रुकू। चौथा फर्ज क्या है? अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, वो रुकू उसका छूट गया, तो क्या वो सजदे सौ कर सकता है? सजदे सौ कर सकता है? नहीं। फर्ज छूट गया तो सजदे सौ नहीं होगा, उसे नमाज दोहरानी है, उसको नमाज दोहराना है। फर्ज का हर एक फर्ज का अदा करना जरूरी है ना? तो रुकू, रुकू के बाद अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, इंशाअल्लाह वाजिबात में मैं बता देता हूँ। सुजूद के बाद कायदा आखिरा, सुजूद के बाद अच्छा, कायदा क्या है? कायदा किताब है ना, अलिफ बे ते से जिससे लिखा है। कायदा क्या है? हाँ, तशहुद की मिकदार बैठना। अत्तहियात के लिए जो बैठते हैं ना बेटा नमाज के अंदर, उसको क्या कहते हैं? कायदा। क्या कहते हैं? अत्तहियात के लिए जो बैठा जाता है ना, कितनी मिकदार में बैठना? तशहुद के मिकदार में, अत्तहियात के मिकदार में बैठे रहना, वहां ठहरना, उसको क्या कहते हैं? कायदा। क्या कहते हैं? कायदा। और फिर उसके बाद में यहां ध्यान रखो, अगर 4 रकात में 2 रकात के बाद अत्तहियात के लिए नहीं बैठा तो क्या, और बाद में सजदे सहू कर लिया, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? हो जाएगी। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? कायदा आखिरा। जो लास्ट वाला कायदा है ना, ये फर्ज है, और पहला वाला क्या है? वाजिब है ना? तो अगर वो छूट गया तो आप सजदे सहू करोगे तो नमाज हो जाएगी, मगर अगर आखिरी वाला कायदा नहीं किए तो नमाज नहीं होगी। ध्यान रहेगा ना इंशाअल्लाह उस दिन। और खुरूज बिस सुनूही, यानी कोई ऐसा अमल जिससे ये साबित हो जाए कि मैं नमाज के बाहर हो गया। और वो सुन्नत क्या है? सलाम फेरना क्या है? सुन्नत है। और कोई ऐसा अमल जिससे ये साबित हो जाए कि मैं नमाज से बाहर हो गया, ये फर्ज है। ठीक है? अगर नमाज के बाद कोई ऐसा अमल कर दिया कि मैं ये साबित करने के लिए कि मैं नमाज के बाहर हो गया, तो वो नमाज हो जाएगी। ठीक है इंशाअल्लाह उसी। नमाज के बाद के वाजिबात, थोड़ा टाइम है बेटा, इंशाअल्लाह सुनोगे ना? ठीक है ना बेटा? इंशाअल्लाह उसी। एक बार बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लिए। अभी हमने दरूद के ताल्लुक से क्या सुना बेटा? जो एक बार दरूद पढ़ता है उससे क्या होता है? बोलो बेटा। हाँ, खड़े रखो। कल हो सकता है तुम्हारे को भी इधर, तुम भी एक मुबल्लिग बन के और इधर खड़े हो जाओ, है ना? इंशाअल्लाह उसी, है ना? बिल्कुल बेफिक्र हो गए। 70 नेकियां मिलेगी। और कौन 70 नेकियां किससे मिलेगी? अल्लाह से और अल्लाह के
फरिश्तों से 70 रहमतें नाजिल होगी। सुभान अल्लाह। हाँ, देखो अगर मैं किसी से कहूँ ना कोई जवाब दे, बिल्कुल बेफिक्र होकर जवाब दो। आप गलती करोगे कोई मुश्किल नहीं, हम लोग है यहाँ सुधारने के लिए, है कि नहीं? मगर मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप ही लोगों की तरह हल्के में बैठता था और आज यहाँ खड़े रहेंगे काबिल बना, है ना? कोई अलग से हम लोग को कोई ये नहीं है कि हम अलग से पैदा हुए, नहीं। आप लोग पैदा हुए, हम गूगल से डाउनलोड हुए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हम लोग भी पैदा हुए ना बेटा, है ना? तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग भी कोशिश करो, आप लोग भी लोगों के सामने कुछ बोलो, ठीक है? इंशाअल्लाह। किस बात का नमाज में वाजिब होने का मतलब ये है कि इसके जानबूझकर छोड़ने से नमाज कासिद और वाजिब अल अदा हो गई। यानी अगर किसी ने कोई अमल को जानबूझकर छोड़ दिया जो नमाज में है, जो नमाज का हिस्सा है, और उसे जानबूझकर छोड़ दिया, तो नमाज उस पर वापस अदा करना जरूरी हो जाता है। नमाज उस पर अदा करना जरूरी हो जाता है। अगर भूल कर इनमें से एक या कई छोटी गलतियां हो गई तो इसके लिए वो सहू कर ले। अगर भूल से हो गया, जानबूझ के किया, तो नमाज गई। ठीक है? अगर जानबूझ के किया तो नमाज फासिद है, उसको फिर दोहराना लाजिम है। मगर भूल कर दिया तो वो सजदे सहू कर सकता है, सजदे सहू से वो नमाज पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। दर्जा झेल बातें नमाज में वाजिब है। तकबीर तहरीमा में लफ्ज अल्लाहु अकबर कहना, बोलो जोर का। तकबीर तहरीमा में लफ्ज, कुछ लोग थोड़ा रुके हुए, ध्यान रखो, अल्लाह लफ्ज कितना मुबारक है कि जब तुम एक बार अल्लाह कहते हो तो दूसरी बार अल्लाह बोलने की तौफीक उस वक्त तक हासिल नहीं होती जब पहली बार अल्लाह बोलना कबूल ना हो जाओ। यह आपका पहली बार अल्लाह बोलना यहाँ से जाता है और सीधा रब ताला के अर्श पे टकराता है, रब ताला उसे कबूल फरमाता है और आप दोबारा अल्लाह बोल सकते हो, है ना? तो ये कितनी मुबारक बात है ना? तो तकबीर तहरीमा में लफ्ज, कहो भाई, अल्लाहु अकबर कहना ये वाजिब है। इसके बाद सूरह फातिहा, सूरह फातिहा ये पढ़ना क्या है? वाजिब है। ये क्या है? वाजिब है। और इसके बाद फर्ज की 2 पहली रकातों में और सुन्नत और नफल और वित्र की हर रकात में अलहम्द के साथ सूरत या 3 छोटी आयतें मिलाना ये वाजिब है। ये क्या है? वाजिब है। यानी फर्ज नमाज पढ़ रहे ना, तो पहली 2 रकात, चाहे वो मगरिब की हो, चाहे जोहर की हो, चाहे असर की हो, ठीक है? फजर में तो 2 ही रकात होती है ना? मगर पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद एक कोई सूरह पढ़ लेना या 3 छोटी आयतें मिला लेना ये वाजिब है। ये क्या है? वाजिब है। और सुन्नतों में हर रकात में मिलाना, सुन्नतों में हर रकात में मिलाना, फर्ज में पहली 2 आयतों में, पहली 2 रकातों में और सुन्नतों में हर रकात में मिलाना चाहिए। अलहम्द और सूरह के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के अलावा किसी दूसरी चीज का ना होना, किसी दूसरी चीज का ना होना, कोई और कलाम, कोई और चीज नहीं पढ़ोगे। यानी जैसे ही सूरह फातिहा खत्म हुई आप पहले क्या कहोगे? आमीन। आमीन। इमाम अबू हनीफा के नजदीक आप बिल्कुल आहिस्ता आवाज में कहोगे, बिल्कुल आहिस्ता आवाज में, हाँ? और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर कोई सूरह पढ़ोगे, कोई सूरह पढ़ोगे, मगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज हरगिज नहीं पढ़ोगे। ध्यान रहेगा ना इंशाअल्लाह? कोई दुआ पढ़ लूं, कोई छोटी सी
दुआ मांग लूं, नहीं, ये दोनों के बीच में नहीं। दुआ के लिए आपको नमाज के अंदर एक बेहतरीन वक्त आता है, एक बेहतरीन वक्त आता है। वो कब है? अत्तहियात, अत्तहियात के बाद दरूद इब्राहिम पढ़ लिया, और दरूद इब्राहिम के बाद नमाज के अंदर जो आयतें हैं उसमें से आपने कोई जो आयतें दुआ की तरह है उसमें से कोई भी दुआ आपने मांग ली जो कुरान के अंदर है, कुरान की आयतें हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बहुत ज्यादा कबूल फरमाता है, बहुत ज्यादा कबूल फरमाता है। दुआए मासूरा पढ़ना है, अगर दुआए मासूरा के अलावा आपने कुरान के अंदर जो आयतों की शक्ल में जो दुआएं हैं वो भी पढ़ ली तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा। कोई एक ऐसी दुआ है किसी के पास जो नमाज के अंदर है और जो कुरान के अंदर है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, जोर का बोलिए, मेरा बच्चा नहीं सुन पाया इधर। रब्बना रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ वक़िना अज़ाबन नार। ये दुआए जामे हैं। ये क्या है? दुआए जामे। इसको क्या कहते हैं? दुआए जामे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई मुझे यही दुआ सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआ ऐसी है कि ये दुआ अपने अंदर सब कुछ कवर कर लेती है कि रब ताला मुझे दुनिया में भी बेहतरीन अता फरमा, आखिरत भी बेहतर बना दे, आखिरत भी बेहतर बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? ऐसे ही नमाज के अंदर, कुरान के अंदर जो भी दुआएं हैं आप जो भी मांग ले, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। मांग लीजिए आप नमाज के अंदर, कुरान में जो भी दुआएं हैं उसमें से जो भी दुआ मांग लो आप मांग सकते हो। उसके बाद क़िराअत के फौरन बाद रुकू करना, क़िराअत के फौरन बाद रुकू करना। क़िराअत हो गई, क़िराअत होने के बाद पीठ सीधी करने के लिए रुकने का, ऐसा ऐसा करने का, ये नमाज के बाहर कर देगी तुम्हें। क़िराअत हो गई, फौरन रुकू में चले जाओ, क़िराअत हो गई, रुकू में चले जाओ, है ना? कुछ लोग क्या करते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह ताला इस बदकारी से हमें बचाए। कुछ लोग क्या करते हैं, नमाज जब शुरू हो जाती है ना तो इंतजार करते हैं। इमाम साहब खासकर रमजान में तरावी में ध्यान रखो, नमाज के अंदर एक एक हुर्फ जो पढ़ा जाता है अल्लाह ताला उसका 27 दर्जा ज्यादा सवाब अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग ऐसे महरूम हैं कि मस्जिद के अंदर जाएंगे और खड़े रहेंगे। इमाम साहब ने क़िराअत शुरू कर दी ना, इमाम साहब ने सूरह फातिहा पढ़ लिए, अब इंतजार करेंगे कि इमाम साहब स्लो होंगे। जब इमाम साहब स्लो होने लगते जाके जल्दी, अल्लाह अकबर, इतनी प्यारी नमाज आप छोड़ रहे हो। तो ये अमल कोई कर रहा हो तो उसको भी बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से समझा दो कि भाई तू ऐसा है कि कुएं के पास आकर भी प्यासा रह रहा है, कुएं के पास आकर भी प्यासा रह रहा है। पहले शामिल हो जा, इमाम के साथ शामिल होना ये बहुत बड़ा सवाब है।